Hello students, welcome back. We are already done with 2 chapters of microeconomics, that is production possibility curve, introduction to micro, and consumer equilibrium utility analysis. Similarly हम 2 chapters statistics के कर चुके हैं, collection of data and introduction to statistics. Now we are starting with the 3rd chapter of statistics or the 5th chapter of total economics, organization and classification of data. आप डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, आप डेटा को क्लासिफाई कैसे करेंगे. जो बहुत सारा डेटा है, रॉ डेटा जिसे हम कहते हैं, वो रॉ डेटा को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप रॉ डेटा को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो डेटा आपको बेनिफिट नहीं देगा, आप उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, आप मीन मीडियन मोड एनालिसिस नहीं कर सकते, डिसीजंस नहीं ले सकते, पॉलिसीज नहीं बना सकते. I think we need 2 lectures of this chapter. Please open page number 32. Page number 32. 3rd chapter, organization and classification of data or data. The data collected from primary and secondary sources is referred to as raw data or unclassified data. डेटा रॉ फॉर्म में है और अनक्लासिफाइड है, उसकी क्लासिफिकेशन नहीं हुई हुई. This data is highly unorganized and difficult to handle. So to facilitate easy understanding, there is a need to organize the data. So what is organization? Organization of data means to present the data in a form which facilitates easy understanding of data. आप डेटा को easily understand करने के लिए जब प्रेजेंट करेंगे इस तरीके से कि उसको समझ आ जाए. When organization of data is to present the data in an easy version and makes it suitable for further processing and interpretation. The most important aspect of organization of data is to classify it. डेटा को ऑर्गेनाइज करने के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है क्लासीफाई करना. जैसे कि आपके स्कूल का जब रिजल्ट आता है, जैसे 9th क्लास का रिजल्ट आया, तो रिजल्ट कैसे आता है, उसे क्लासीफाई किया जाता है 9th A, 9th B, 9th C, 9th D. और क्लासीफाई कैसे किया जा सकता है. और जब 10th का रिजल्ट आता है, 10th का रिजल्ट बोर्ड का रिजल्ट नेट पे आता है, तो वो क्लासीफाई किया जाता है स्कूल के कोड नंबर, एफिलिएशन नंबर से. लाइक सेंट थॉमस स्कूल, रायन इंटरनेशनल स्कूल लुधियाना, BCM 32 सेक्टर लुधियाना, उसमें सभी बच्चों का, उसमें सेक्शन वाइज नहीं होता है. और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट आता है तो स्कूल वाइज नहीं आता, रोल नंबर वाइज आता है, सीरियल ऑर्डर ऑफ रोल नंबर वाइज. इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. डेटा को किस पैरामीटर पे क्लासीफाई करना है. अब कोविड-19 के अगर केसेस हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो कंट्री वाइज है, USA, स्पेन, फ्रांस, ईरान, इंडिया. और इंडिया में देखें तो जोग्राफिकल एरिया वाइज है, पंजाब में इतना, महाराष्ट्र में इतना, मध्य प्रदेश में इतना. सो ये जो डेटा है वो कैसे क्लासीफाई करना है, जेंडर के बेसिस पर, एज के बेसिस पर, सेक्स के बेसिस पर, मैरिटल स्टेटस के बेसिस पर, एटसेट्रा. I hope I have cleared this point. So what is organization of data? Raw data को present करना easily understandable form में, ताकि उसको आगे analysis interpret किया जाए. And what is organization of data? Presentation of data, classification of data. उसको क्लासीफाई करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. लेट्स सी द डेफिनेशन.
Classification is the process of arranging data into different groups or classes on the basis of some common features. क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है डेटा को अरेंज करना डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस में बेस्ड ऑन द फीचर. सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा? टू ऑर्गेनाइज द डेटा और प्रेजेंट द डेटा अकॉर्डिंग टू द फीचर्स. Classification of data converts raw data into the pure data or underline perfect data. So organization of data, उस चीज को ऑर्गेनाइज करना. क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, उसको किसी फीचर्स पर ग्रुप करना. Let's see the different ways to classify the data. Basis of classification of data. Geographical or spatial classification. The classification of data is based on the geographical or location like country, state, cities, etc. Differences of the data. The agriculture yield per hectare of the different countries is an example of geographical classification. कोविड-19 के केसेस को अगर आप गूगल पे लिखेंगे कोविड-19, उस पर स्टैटिस्टिक्स क्लिक करेंगे तो आपको डेटा ज्योग्राफिकल फॉर्म में आएगा. कंट्री वाइज आएगा, स्टेट वाइज आएगा, सिटी वाइज आएगा, एरिया वाइज आएगा. सो द डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी. नीचे चेक कर सकते हैं. ऑब्वियसली ये डेटा लर्न नहीं करना, ये एग्जांपल आप किसी भी बेसिस पे बना सकते हैं. कर्नोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. व्हाट इज कर्नोलॉजिकल? सीरियल नंबर वाइज, डेट वाइज, ईयर वाइज. जो साल पहले है वो डेटा पहले, जो साल बाद में है वो डेटा बाद में, या रिवर्स ऑर्डर. मीन्स यू मे से रेनफॉल इन लुधियाना. लुधियाना में रेनफॉल का डेटा चाहिए इन द लास्ट 10 ईयर्स. तो डेटा रहेगा 2011, 2012, 2013, 2014 टिल 2020. दिस इज कॉल्ड कर्नोलॉजिकल डेटा. और हमें चाहिए स्नोफॉल इन शिमला. शिमला में कितनी स्नोफॉल हुई है इसका डेटा इकट्ठा करना है इन द लास्ट 5 विंटर्स. तो इट वुड बी winter of 2015, winter of 2016, winter of 2019, winter of 2020. Or one more case. Number of divorces filed in Ludhiana. लुधियाना में कितने डिवोर्सेस फाइल किए गए हैं लास्ट ईयर में? तो इट वुड बी जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून टिल दिसंबर. This classification is one in which the data are classified preferably in ascending or descending order on the basis of difference in time. Population of India in different years is an example of chronological classification. आपको ये लर्न नहीं करना है. You need not learn this. आपको बस एक डेटा बना देना है कोई भी रैंडमली, ईयर वाइज और मंथ वाइज और डेट ऑफ द मंथ 1 2 3 4 till 30. I think I've made my point clear. नीचे नोट दिए. इन द गिवन एग्जाम्पल द वेरिएबल पॉपुलेशन इज अ टाइम सीरीज एट इट डिपिक्ट्स सीरीज ऑफ वैल्यू इन डिफरेंट ईयर्स. इसे टाइम सीरीज डेटा भी कहते हैं. सो व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल डेटा? द टाइम सीरीज डेटा. डन एवरीवन? आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं. मुझे कुछ अराउंड 6 क्वेश्चंस आपको करवाने हैं, 6 to 7 क्वेश्चंस. इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आने 3 to 4 मार्क्स का. या थियरी आ जाएगी जो हम कर रहे हैं, या प्रैक्टिकल आएगा जो मैं अब आपको करवाने जा रहा हूँ. जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आई विल बी गिविंग यू 10 क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस. वो 10 क्वेश्चन आपने अपने आप सॉल्व करने हैं. यू आर सपोज टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस योरसेल्फ. प्लीज ओपन योर रजिस्टर. प्लीज ओपन योर रजिस्टर जिसमें आपने इकोनॉमिक्स के नोट्स बनाए हुए हैं.
चैप्टर का नाम लिखिए, ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। राइट डाउन द चैप्टर नेम, ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। Write down question number 1. Write down question number 1. Prepare the frequency array of marks. Prepare the frequency array of marks obtained by 30 students, obtained by 30 students of a class in English test, of a class in English test। 30 स्टूडेंट्स ने इंग्लिश का टेस्ट दिया। पेपर था 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स का पेपर था। 30 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया और आपको फ्रीक्वेंसी एरे बनाना है। हर क्वेश्चन 5 नंबर का आता, तो मार्क्स कितने आएंगे? 0, 5, 10, 15 इस रेंज में। और वो डेटा है दिस। राइट, ये 30 ब्लॉक्स मैंने बनाए हैं। 30 स्टूडेंट्स के मैं इसमें मार्क्स लिख रहा हूँ और 50 मार्क्स का पेपर था और आपको डेटा को क्लासीफाई करना है फ्रीक्वेंसी एरे सीरीज में, और मैं मार्क्स लिखने जा रहा हूँ। ये डेटा है, what one we are left with, this is the data, प्लीज चेक कीजिए। दिस इज कॉल्ड रॉ डेटा, दिस इज रॉ डेटा। अब इसका हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले हमने उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, ये मैंने सेल्स बना के ऑर्गेनाइज कर लिया डेटा। अब डेटा को क्लासीफाई करना है। किस बेसिस पे क्लासीफाई करना है? क्वेश्चन में लिखा है इंग्लिश टेस्ट में जो मार्क्स आए हैं। ये एक स्कूल है, स्कूल के अंदर एक क्लास है, उस क्लास का एक सेक्शन है। उस सेक्शन में 30 स्टूडेंट्स ने पेपर दिया। पेपर 50 मार्क्स का था और ये 30 स्टूडेंट के मार्क्स हैं। आई होप आपने डेटा नोट कर लिया है। आई एम गिविंग यू 15 सेकेंड्स, डेटा को नोट डाउन कीजिए।
नाउ सॉल्यूशन। पहले समझेंगे, बाद में नोट डाउन करेंगे। मार्क्स, किस में मार्क्स आए हैं? इंग्लिश में, इंग्लिश टेस्ट में। मिनिमम वैल्यू चेक कीजिए। द मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 50। द मिनिमम इज 0 शून्य, द मैक्सिमम इज 50 और 5 का गैप है, तो इट वुड बी 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, solution। Marks in English 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। टैली बार, कोई भी डेटा इकट्ठा करना हो टैली बार में करते हैं पहले, एंड आफ्टर टैली बार फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स। Zero, 5, 15, 10, 25, 40, 30, 35। आप ऐसे करेंगे, चलो अभी हम काउंट कर लेते हैं। आप काउंट कर लेंगे, बट अगर डेटा 1000 का हो, डेटा 20,000 का हो, इंडिया की पॉपुलेशन काउंट करनी है, किसी बैंक के अंदर नोट काउंट करनी है, ये मेथड साइंटिफिक मेथड है, इसमें गलती के चांसेस सबसे कम है। Then we have is 45, 40, 0, 5, 0, 15, 40, 25, 30, 30, 40, 5, 30, 30 अगेन। अब ये 4 लाइन्स हो चुकी हैं, 5-5 का ग्रुप बनता है। क्लोज क्रॉस का मतलब है ये 5 का ग्रुप बन गया। देखिए हम यहां तक पहुंच गए थे 30 पे। गॉट इट? 5, 45, 45 अगेन, 50, 30, 35। दिस इज द डेटा। अब हम फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे। 3, 4, 2, 3, 0, 2, 6, 2, 4, 3, 1, and the total is 7, 9, 12, 14, 20, 22, 26, 29 and 30। और 30 मार्क्स, 30 स्टूडेंट्स ही थे क्लास में। अब इस डेटा से देखना कि 45 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं। कर तो आप अभी भी लेंगे, बट दैट इज द रॉ डेटा। प्रैक्टिकली स्टैटिस्टिक्स में इस डेटा की वैल्यू 0 है। 45 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं? 3 स्टूडेंट्स के आए हैं।
45 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के आए हैं, सो हमें यहाँ से पता लग जाएगा। आई थिंक फर्स्ट एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया जो मैंने एक्सप्लेन किए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में। चलिए इस क्वेश्चन के बाद फिर से थ्योरेटिकल पोर्शन पे जाते हैं। पेज नंबर 33, पेज नंबर 33, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। कई बार डेटा को क्लासिफाई किया जाता है क्वालिटी के बेसिस पर। इट डज नॉट मीन कि हमें नंबर्स नहीं डालने, नंबर्स तो आएंगे, प्लीज माइंड इट, नंबर्स के बगैर सम नहीं हो सकता। बट उस नंबर्स को जो क्लासिफाई किया है, ग्रुप किया है, वो किस बेसिस पे किया है? वो क्वालिटी के बेसिस पे किया है। जैसे कि kids having IQ more than that and kids having IQ less than that. Adults who are married, adults who are divorcee, adults who are separated and adults who are single. इस basis पर when the data are classified according to the qualities or attributes of data like honesty, beauty, intelligence, IQ, और अभी मैंने बताया था मैरिटल स्टेटस एक्सेट्रा, देन द क्लासिफिकेशन इज रेफर्ड टू एज क्वालिटेटिव और डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कैन बी सिंपल एंड मैनीफोल्ड। सिंपल और मैनीफोल्ड पे हम बाद में जाएंगे, वो भी टॉपिक करने ऑन लेटर ऑन स्टेज। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, व्हाट इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन? दिस डेटा को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, नॉट ऑन बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ chronological order, not on the basis of quality, but on the basis of numbers. We have classified the data as per numbers. If the data are classified on the basis of phenomenon which is capable of quantitative measurements such as age, height, weight, sales, profits, the classification is referred to as quantitative classification. It is also known as numerical classification. Earning of the different departmental stores is an example of quantitative classification. Please check the answer niche, not answer, the example. Note the quantitative phenomena under this study is known as variable, and this is called classification by variable. This is variable. This is called variable, and this is the classification of variable. Classification of quantitative data result in the formation of frequency distribution. A detailed study of frequency distribution is discussed ahead. अभी हम जो पढ़ रहे हैं, ये जो मैंने करवाया, this is called frequency array. This is nothing but the frequency array. मतलब डेटा को क्वांटिटेटिव डेटा को आप किस तरीके से शो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। Clear everyone? I think I've made my point clear. What is organization of data? What is classification of data? How the data is classified on the basis of geography, spatial, on the basis of chronological time series, on the basis of quantitative, and on the basis of qualitative, and quantitative is also known as descriptive. आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्टिव इज क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। राइट डाउन द क्वेश्चन। सो राइट डाउन सेकंड क्वेश्चन। फॉलोइंग आर द मार्क्स फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट हम कर चुके हैं, दिस इज क्वेश्चन 2।
following are the marks of 30 students. Following are the marks of 30 students in a class test of economics. In a class test of economics. Full stop. Classify the raw data into 5 groups. Classify the data into 5 equal groups. 5 ग्रुप्स में डेटा को डिवाइड करना है. क्वांटिटेटिव डेटा है क्योंकि मार्क्स गिवन है, मार्क्स के बेसिस पे करेंगे. तो पहले रॉ डेटा लिख लेते हैं 30 स्टूडेंट्स का. सो 50 मार्क्स का पेपर रखते हैं. 50 मार्क्स का पेपर था और ये मार्क्स हैं. मैं रैंडमली इसलिए लिख रहा हूँ ताकि डेटा रॉ नज़र आए. सो ये डेटा गिवन है. 30 स्टूडेंट्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 16 24 30. 30 स्टूडेंट्स हैं. XX मीन्स दे आर एब्सेंट्स और 32 स्टूडेंट्स से 2 एब्सेंट थे. अब आपको 5 ग्रुप्स में रखना है. प्लीज चेक द मिनिमम मार्क्स. एक बार डेटा नोट कर लीजिए. आई एम गिविंग यू 15 to 20 सेकेंड्स. 15 से 20 सेकेंड लीजिए और डेटा को नोट डाउन कीजिए. टेक योर टाइम. डेटा नोट कर लीजिए. चलिए शुरू कर दी. प्लीज चेक द मिनिमम मार्क्स. व्हाट आर द मिनिमम मार्क्स इन द क्वेश्चन? द मिनिमम मार्क इज 0 0 and the maximum marks is 50. 5 ग्रुप्स में बनाना है तो 10 10 का ग्रुप बना लेते हैं. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. marks 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. tally bar. Frequency. Just to clear this thing, this 10 is not 10, this is 9.99.
दिस इज 10। मतलब अगर 10 होगा तो इसमें कंसीडर नहीं करना है, इसमें कंसीडर करना है। 20 होगा तो इसमें कंसीडर नहीं करना है, इसमें करना है। दिस 10 इज बेसिकली 9.99, दिस 20 इज बेसिकली 19.99 and this 50 is called 49.99. But if you got 50, so we'll consider it here only. Let's start. Zero, 29, 35, 32, 40. Where to consider 40? Here. 40, 46, 12, 28, 37, 2, 10, 14, 29, 48, 42, 47. आई एम हेयर 47 पे, राइट। 5 हो गए तो ग्रुप चेक कर लें कि 16 हो गए, कोई नंबर मिस ना हो गया हो। 2 + 3 5 + 3 8 + 3 11 + 5 16, राइट। 16 पर ही पहुंचे। 16, 41, 36, 4, 39, 8, 22, 7, 29, 21, 7, 24, 43, 50. अब 50 के लिए अलग लाइन बनाओ। 52, 51, नो, 50 is this, 50. So 6 students got 0 to 10 marks, 4 students got 10 to 20 marks, 7 students got 20 to 30 marks, 5 students got 30 to 40 marks and 8 students got 40 to 50 marks. अब इससे हम मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन कंप्यूट कर सकते हैं, कोरिलेशन कंप्यूट कर सकते हैं। वो आगे के चैप्टर्स हैं, अभी तो सिर्फ डेटा क्लासिफाई करना सीख रहे हैं। 10 + 7 17 + 22 8 30 स्टूडेंट्स। 30 स्टूडेंट्स का डेटा आ गया। 3 मार्कर क्वेश्चन इट इज। हमने 40 यहाँ पे लिया, यहाँ नहीं। कई टीचर्स, कई ऑथर्स कहेंगे 40 यहाँ भी ले सकते हैं, वो भी चलता है, क्योंकि डिपेंड करता है आप किस तरीके की पॉलिसीज बनाना चाहते हैं। वी कंसिडर इट हेयर, नॉट हेयर, इफ द 40 कम्स इन। नाउ पेज 33, बैक टू द थ्योरेटिकल पोर्शन। थ्योरेटिकल पोर्शन पे जा रहे हैं। वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल होता है जिस बेसिस पर हम क्वांटिटेटिव डेटा को चेंज करते हैं। दिस इज क्वांटिटेटिव डेटा, दिस इज वेरिएबल मार्क्स। वेरिएबल इज अ फीचर और फिनोमिनन which is capable of being measured and generally changes its value over time. वेरिएबल एक फीचर है जिसको आप मेजर कर सकते हैं और जिसकी वैल्यू चेंज होती है। It is broadly classified into 2 types. 1, discrete variable. A discrete variable can only take certain integral values. Its value changes only by finite jumps. It jumps from one value to another but does not take any intermediate value like the fraction value. हमने जो फर्स्ट एग्जाम्पल किया है, कॉपी आपके सामने है, फर्स्ट एग्जाम्पल किया, चेक कीजिए। उसमें डेटा था 0, 5, 10, 15, 20। इंटेग्रल वैल्यूज थी और 5 से जंप कर रहा था। तो जो मार्क्स इन इंग्लिश थे वो थे डिस्क्रीट वेरिएबल।
और ये जंप नहीं कर रहा है, ले इंटेग्रल वैल्यू ही रहे, बट ये अगर आप ध्यान दें ये जंप नहीं कर रहे हैं। और यह भी 4.2 भी हो सकता है, 39.5 भी हो सकता है। कोई फर्क पड़ेगा अगर मैं इसे 39.5 कर दूं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 39.5 भी इसमें आ रहा है, 30.5 39 भी इसमें आ रहा है। सो दिस इज कंटिन्यूअस वेरिएबल। जो सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है वो है कंटिन्यूअस वेरिएबल का। A continuous variable is one which can take any value, that is any integral value or fraction value in a specified interval. For example, the interval 0 to 10 can contain integral values like 1, 4, 7 and fraction value like 0.5, 4.6 and 5.3. मैं तभी पहले क्वेश्चन कराता हूँ ताकि थियरी समझानी इजी हो जाए। Minimum and maximum temperature of a city, height of individual, weight of individual are the example of the continuous variables. I think I have made this point clear. अब डेटा को तीन तरीके से क्लासिफाई हमने देखा है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव डेटा तीन तरीके से शो किया जा सकता है। The first is raw data, which is individual series. जब भी raw data given होगा like this, we say it individual series. अगर raw data ऐसे given होगा, जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में किए, वी हैव जस्ट कंप्लीटेड द फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज डिस्क्रीट सीरीज। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने रॉ डेटा को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट किया है। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने रॉ डेटा को कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट किया। आपको दोनों फ्रीक्वेंसी आ रहे हैं, आपको कौन सी सीरीज में कन्वर्ट करना है क्वेश्चन में गिवन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने रॉ डेटा को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट किया था और इस क्वेश्चन में हमने रॉ डेटा को कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट किया है। A frequency distribution is comprehensive way to classify raw data of a quantitative variable. It shows how the different values of a variable are distributed in different classes along with their corresponding class frequencies. It facilitates easy understanding of the data. Terms related to frequency distribution will come it on the later part. बाद में जाते हैं इस पॉइंट पर। Types of frequency distribution. Please check the types of frequency distribution. First is discrete. A discrete frequency distribution is a distribution which is based on a discrete variable. As we have already studied that a discrete variable is one which can take only specific integral values and jumps from one to another. So in a discrete frequency distribution, the integral values of discrete variable along with their respective frequencies are represented in the form of a table. Please check the example. This is discrete variable, this जो हमने example 1 किया। Frequency array. It is a special form of discrete frequency distribution in which the values are arranged in increasing or decreasing order. Next we have is continuous series. A continuous frequency distribution is a distribution which is based on a continuous variable. See continuity में that can take integral as well as fraction value between the two specified limit. इस क्वेश्चन में specified limit क्या थी? 0 to 50. सब कुछ 0 to 50 में था।
So in a continuous frequency distribution, the groups along with their respective class frequencies are represented in the form of a table. Please नीचे check कर लीजिए table. Clear everyone? That's it. Now let's do a question related to this. Before moving to the question, let's do one theoretical question. Page number 38. चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत टॉपिक्स हैं, सारे नहीं करने हैं. जो मैं करवा रहा हूँ सिर्फ वो करना है. You are supposed to do only that much I have explaining in this lecture, and I'll do the questions for practice. That's it. Page number 38. Question number 10. Page number 38. Question number 10. What is variable? Distinguish between a discrete and a continuous variable. इसमें और इसमें डिफरेंस बताइए. A discrete, what is variable? A measurable feature which takes different values at a different point of time at different circumstances is called variable. जो वैल्यू चेंज होती रहती है, जैसे मार्क्स ऑफ इकोनॉमिक्स हर बच्चे का डिफरेंट है. Discrete variable, a variable which can take only integral values is referred to as discrete variable. दूसरी तरफ, a variable which can take integral values as well as fraction values. Please underline. इस तरफ अंडरलाइन कीजिए इंटेग्रल वैल्यू, दूसरी तरफ अंडरलाइन कीजिए इंटेग्रल एंड फ्रैक्शन वैल्यू बोथ. मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन. द डेटा रिलेटेड टू अ डिस्क्रीट वेरिएबल इज कलेक्टिंग बाय काउंटिंग, काउंट करना. द डेटा रिलेटेड टू कंटिन्यूअस वेरिएबल इज कलेक्टेड बाय मेजरमेंट, मेजर करना. इसके अंदर हम काउंट करते हैं कितने डेली बार आए, इसमें हम मेजर करते हैं रेंज 0 to 10 में कितने हैं. काउंटिंग इसमें भी होती है, काउंटिंग में साथ में रेंज चेक करनी होती है. डिस्क्रीट वेरिएबल कैन चेंज ओनली बाय इंटेग्रल वैल्यूज. प्लीज अंडरलाइन जंप. चेंज इन बाय इंटेग्रल वैल्यू का मतलब है जंप, इट जंप. कंटिन्यूअस वेरिएबल कैन चेंज बाय इंटेग्रल वैल्यू एज वेल फ्रैक्शन वैल्यू, डू नॉट जंप. फर्स्ट और थर्ड ऑलमोस्ट सेम है, बेसिक डिफरेंस ये है उसमें वैल्यू आती है, थर्ड में लिखा है वो जंप करते हैं. एग्जाम्पल, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाइट, वेट, टेम्परेचर. जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वो पॉइंट्स में तो आ नहीं सकते. 2.5 एम्प्लॉयज, 1.25 स्टूडेंट्स, वो इंटेग्रल वैल्यू ही रखते हैं. पेज नंबर 41. पेज नंबर 41. हमने डेटा किया था, मैं बता रहा हूँ, मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ उसी पे स्टार मार्क कीजिए, वही क्वेश्चंस करने ज़रूरी हैं. बाकी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पेपर में वो क्वेश्चंस आते नहीं हैं, तो यू मे इफ़ यू वांट टू, बट यू नीड नॉट. जो पेपर में क्वेश्चंस आने वो मैं यहाँ पे खड़े होकर करवा रहा हूँ या प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, तो उस पर स्टार मार्क कीजिए. पेज 41, क्वेश्चन 26. हमने बताया था डेटा को कैसे क्लासीफाई करते हैं. डेटा को क्लासीफाई करने के 4 मेथड से. फर्स्ट वाज ज्योग्राफिकल, सेकंड वाज क्रोनोलॉजिकल, द थर्ड वाज क्वालिटेटिव, द फोर्थ वाज क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव में हमने पढ़ा है वेरिएबल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस. रॉ डेटा को इसमें चेंज करना, दिस इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. क्वालिटेटिव से जब डेटा क्लासिफाई किया जाता है, लव, मैरिटल स्टेटस, इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, तो उसे कहते हैं एट्रीब्यूट. दैट इज नॉट वेरिएबल, दैट इज एट्रीब्यूट. हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट? वी आर लेफ्ट विद 2 क्वेश्चंस. आज की क्लास में 2 क्वेश्चंस रहते हैं अभी हमारे. What is variable? Variable is a phenomenon which is capable of being expressed numerically. Attribute is the phenomenon which is not capable of being expressed numerically. You cannot say how much you love.
You cannot convert into number whether you are honest or not. Age, weight, height, income are the examples of variables. Beauty, intelligence, honesty are the examples of attributes. अब क्वालिटेटिव को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है? सिंपल एंड मैनीफोल्ड. सी सिंपल क्लासिफिकेशन मैंने कहा था हम बाद में पढ़ेंगे, वही बाद में है. क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कैन टेक द फॉलोइंग टू फॉर्म्स. सिंपल क्लासिफिकेशन if the data are classified into only two classes such as male, female, married, unmarried, employed, unemployed. Manifold classification, उसके अंदर आगे पार्ट्स आ जाए. ये आप अपने आप पढ़ेंगे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. हमने 3 क्वेश्चंस किए, तीनों पे पहले स्टार मार्क कीजिए. प्लीज मार्क स्टार ऑन पेज 38 क्वेश्चन 10. देन मार्क question 26 on page 41 and then 28 question on page 41. और 28 में सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, अपने लेवल पे आप पढ़ेंगे. What is qualitative? Like male, female. What is manifold? Male, female, employed, unemployed, employed, unemployed. और इसको और भी ऐसे शो किया जा सकता है, राइट? employed, male and female, unemployed, male and female. One more example. Employed, unemployed. Male, female. यहाँ पे वो मेल आएंगे जो एम्प्लॉयड है, यहाँ पे वो आएंगे मेल जो अनएम्प्लॉयड है. हेयर फीमेल विच आर एम्प्लॉयड एंड हेयर फीमेल विच आर अनएम्प्लॉयड. सो दिस इज simple qualitative data classification. This is manifold. We are doing chapter organization and classification of data, and in this lecture we have already done what is organization of data, what is classification of data, what are the ways to classify the data. और हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं अभी, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के. Tomorrow we will continue with this chapter. Till then, bye bye, take care, God bless.